मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 2023 पाकिस्तान को जो पाकिस्तान कंप्लीट हुआ है वो 76 साल का पाकिस्तान है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डे है आज वो 77 यानी 77वां ये इंडिपेंडेंट डे है। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी गलती इसमें आ रही होगी। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे 76वां यौम आज़ादी। नहीं, यौम आज़ादी जो है आपका, इंडिपेंडेंट डे जो है वो आपका 77th है। और पाकिस्तान को बने हुए आपके 76 साल हो चुके हैं। आप काउंट कर सकते हैं कि सबसे पहला इंडिपेंडेंट डे जो था, डे इंडिपेंडेंट यानी यौम आज़ादी, वो 14 अगस्त 1947 है। और आज 14 अगस्त 2023 है। अगर आप काउंट करें तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट डे आज 77th है, ना कि 76। हाँ, पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब एक आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक बर्थ डे होती है, वो उसी दिन की होती है जो उस दिन पैदा होता है। सालगिरह जब हम मनाते हैं तो एक साल बाद काउंट करते हैं। तो आप मेरे ख्याल है बहुत बड़े बड़े चैनल्स में, बहुत बड़े बड़े अखबारात में आज देख रहे होंगे कि 76 इंडिपेंडेंस डे और 76वीं यौम आज़ादी। नहीं, यौम आज़ादी 77वीं है यानी 77th है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए। पहली इंडिपेंडेंट डे हमने मनाया था 1947 14 अगस्त, और ये जो हम मना रहे हैं वो 14 अगस्त 2023। सिर्फ इस जो जहाँ तक आवाज़ मेरी जा रही है उनकी आगाही के लिए मैंने ये बात की है। आइए सबसे पहले मेरे अहम तरीन मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आर्मी चीफ की 3-3.5 मिनट की, है तो बहुत लंबी, लेकिन 3-3.5 मिनट की ये जो टॉक्स है, ये जो बात है, ये जो कौम से खिताब है, ये जो आवाम से खिताब है, इसको सुनते हैं। बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मेहमान भी सुने, मैं उनका तारुफ इस तकरीर के बाद करूँगा। आइए सुनते हैं। I am here to reassure the people that we, the defenders of Pakistan, will never hesitate from any sacrifice in preserving our sovereignty and territorial integrity. Whenever and wherever required, we shall contribute towards the comprehensive national security of Pakistan and the national development efforts. To my Kashmiri brethren, I would say that inshallah, you will also get free from the clutches of the brutal occupation forces, as we got our freedom 76 years ago through your rightful cause of self-determination and indigenous freedom struggle. No evil design can withstand the determination of the Kashmiri people. Despite the communication blackouts, blatant use of the bayonets,
and turning illegally Indian occupied Jammu and Kashmir into the largest prison of the world. It is for the conscience of the international community to realize that Indian excesses in Kashmir have gone unaddressed and right to freedom and self-determination is being denied at the altar of geopolitical necessity. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, who are resiliently fighting against the savages of terrorism and proxies for over 2 decades, we want to reassure that we will inshallah succeed against this menace being waged against us. We want you to live in peace. We will never be coerced by any aggressive designs, and neither can the region afford such hostility between 2 nuclear powers. Unfortunately, the adversary continues to peddle its nefarious designs against us. For petty political mileage, I would humbly remind them of their predicament. Last time they tried to do so. With respect to our Afghan brothers, we have been the most hospitable nation and wish that they reciprocate to our earnest efforts to the least and not allow their soil to be used against us. You have chosen a noble profession entrusted with the sacred duty of defending Pakistan against its enemies within and without, visible and invisible. Pakistan Army as a national army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. Always be ready for any sacrifice to uphold the honor and dignity of this country. Always remember, Pakistan is our identity and the rationale to exist. Pakistan है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं. फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं. फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं. मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. जी, ये आपने बड़े कीमती अल्फाज हैं आर्मी चीफ के, बड़े जज्बे से उन्होंने ये बात कही है. मेरे साथ आज मेहमान हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान. आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया. मेरे साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी. हमेशा हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सफ़र में निकल जाते हैं, इस दफ़ा भी निकल गए हैं. और अब जाहिर है इतना पूरी कौम निकली हुई है तो इतने आराम से तो आप स्टूडियो पहुंच नहीं सकते हैं, बहरहाल फ़ोन पे होंगे. मैं आ जाता हूं सबसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ. अब्दुल्ला गुल साहब, 76 बरस का पाकिस्तान हो चुका है. मैंने तस्हीह की है, बहुत जगह लोग ये कह रहे हैं कि जी 76, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ जनाब सियासी लोग भी और रहनुमा भी कि जनाब 76वीं योम आज़ादी. भाई 76वीं योम आज़ादी नहीं है, ये 77वीं योम आज़ादी है. हमारे सियासतदानों क्या हो गया, सिखाइए सर कुछ. दूसरा ये है कि 76 बरस का पाकिस्तान हो गया है, कहाँ हैं सर हम खड़े हैं, क्या जज्बात हैं आपके इस मौके पे, क्या हालात हैं, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो. आज आप देखें कि मैंने ग्रीन टी शर्ट पहन के पाकिस्तान लिखा हुआ है और आई एम प्राउडली सिटिंग. मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है. दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल डॉक्टर हो और दानिश भी हो साथ, तो फिर तो डबल काम होता है. बिल्कुल आपने टेक्निकल पॉइंट उठाया है और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये 77वां जो है वो आज़ादी का दिन तो 77वां है. तो हाँ, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 बरस हुए, ये बात बहुत टेक्निकल है. जहां तक ताल्लुक है क्या खोया क्या पाया, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनके हवाले से आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल है, मुझे और मेरी तंजीम जवानान पाकिस्तान को, कि आज हमने 850 फुट लंबा झंडा और 11 फुट लंबा चौड़ा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों में हम उसको लेके मार्च किया.
1000 से ज्यादा उसमें शुरका थे, उसके अंदर जवानान थे, उसके अंदर तमाम सूबों की कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन थी और बड़ा एक मैं कहता हूँ जोश जज्बा था। लोग खड़े थे और आ रहे थे, देख रहे थे, बड़ा दिल को तसल्ली हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा हमने जो है वो आज यहाँ लेके आए, डिस्प्ले किया। अब क्या खोया क्या पाया? मेरे ख्याल में बहुत कुछ पाया हमने। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक मुल्क पाया, हम एक निजाम की जुस्तजू के अंदर है। ठीक है, कौमों की जिंदगी में ये 50-100 साल कोई मानी नहीं रखते। ये 100 साल तो अमेरिका के अंदर खाना जंगी होती रही, सिविल वॉर होती रही, किसी से ढकी छुपी भी बात नहीं है। फिर आप जो है जिस हालात के अंदर पैदा हुए, आपको तो ये कहा गया था कि 3 महीने के बाद माफी मांग के आ जाएगा भारत के अंदर, दोबारा जम हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। ये जो है ना, भारत का सीना चीर के पाकिस्तान पैदा हुआ है, ये बड़ी बात है। और फिर एक निजाम के लिए, एक मकसद के लिए, एक सोच, एक फिक्र और 2 कौमी नजरिए के लिए जो आज मणिपुर, जयपुर और जिधर जिधर जो हालात जिस तरह से जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, 2 कौमी नजरिया तो मजीद उजागर होके आया, बल्कि ये ग्लोबल बन गया कि दुनिया के अंदर 2 कौमें बसती हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तो एक बड़ा विजनरी लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह जैसे लोग देख सकते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, हमने न्यूक्लियर बने, हम बावजूद पाकिस्तान पे जिस तरह से हुआ, 2 लख्त कर दिया गया, जंगें मुसल्लत की गई। एक वो जंग थी जो हमने जब देखा कि पाकिस्तान को 2 लख्त करने से पहले 65 की जंग, जब दोबारा 71 की जंग आई तो उस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो नजरियाती हदूद की भी जो है मुहाफिज बने, क्योंकि जोग्राफियाई हदूद को हमें तोड़ा गया और दुश्मन ने हमें अंदर से जो है वो खोखला किया गया। कितनी खूबसूरत बात आर्मी चीफ ने जिस तरह से कही कि कौम एक थी, हम एक हैं और एक रहेंगे, और बड़ा वाज़ेह पैगाम कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, जो दुनिया दहशतगर्दी की चालें पाकिस्तान में चल रही है और जिस तरीके से अवाम को लड़ाने की कोशिश की गई, ये तमाम बातें उन्होंने डंके की चोट के ऊपर कही और जिस जज्बे से कही, मैं समझता हूं वो दीदनी था। क्योंकि बोला जाता है, लोग बोलते हैं, और बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि ये जो मौज होती है ना, दरिया में ही होती है, बैरून दरिया कुछ नहीं होती। ये जितनी हमारी बातें हैं ये सब पाकिस्तान की वजह से हैं। आज हम बरतानिया में, अमेरिका में, दीगर जगहों के ऊपर अपना तमस्कर उड़ाने के लिए बैठे हैं। जब ये मणिपुर के अंदर वहां क्रिश्चियंस को बरहना करके औरतों को जो है परेड कराई गई, तो क्या भारतीय लोगों ने जो है उसकी तशहीर की? क्या गाड़ियों के ऊपर वीडियो लगा के बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर उसको दिखाया गया? कोई नहीं दिखाएगा। अपने पेट से डॉक्टर साहब कोई कपड़ा नहीं उठाता। न्यूक्लियर आप बन गए, आलम इस्लाम की सुपर पावर आप बन गए, तमाम दुनिया के जो 48 मुल्क अमेरिका समेत आ गए और आपकी दहशतगर्दी की जंग को पिछाड़ न सके। आपने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर इतनी कामयाबी हासिल की जिसकी कोई मिसाल नहीं मौजूद। आपने मिसाइल प्रोग्राम हासिल किया, आप नजरियाती तौर के ऊपर आप इसराइल और भारत की जिद बन के सामने आ गए। आपने जो है बावजूद भारत की एक इतना बड़ा हुजूम होने के बावजूद आपने भारत को आंखों में आंखें डाल के देखा, आपकी तिजारत बढ़ने लगी, आप एशियन इकोनॉमिक टाइगर बने। पहले लोग मायूसी बताते हैं डॉक्टर साहब, पॉजिटिविटी कोई नहीं बताना चाहता। आपने इनकलाब लेके आए, ज़रूरी इनकलाब लेके आए, लेकिन फिर हम करप्शन का भी शिकार हुए, हम जो है वो उकरबा परवरी का भी शिकार हुए, हम जो है वो एक दूसरे की जात पात, बरादरी और मजहब और मसलक के अंदर जो है हम फंस के रह गए और हम पे प्रॉक्सी वॉर्स कर लड़ी गई। हमारे ऊपर बकायदा जो है वो मसलक की बुनियाद के ऊपर प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई, हम उससे भी सुरखरू हुए। हमारी ISI दुनिया की नंबर 1 बन गई। अल्लाह का शुक्र है, ये कितनी बड़ी बात है। हमने रूस जैसी सोवियत यूनियन को जो है हमने 16 टुकड़े कर दिए, 6 इस्लामी रियासतें बन गई। ये कोई कम बात है? इसका खुद एक्सेप्टेंस जो है, आप तो हमारे घर तशरीफ लाए हुए हैं, आपने देखा वो दीवारें बर्लिन का टुकड़ा जो मेरे वालिद को जर्मन हुकूमत ने पेश किया, असल में मेरे वालिद को नहीं, वो तो पाकिस्तान को पेश किया, पाकिस्तान के एक सपूत को पेश किया कि इंतहाई अदब एहतराम के साथ जनरल हमीद गुल के नाम जिसने दीवारें बर्लिन के ऊपर पहली दरब लगाई और मशरकी और मगरबी जर्मनी को एक किया। ये बात तो दुनिया मान रही है। इसके अलावा आप देखें, आपने इंडस्ट्री के अंदर अपना मुकाम कमाया, आपने दीगर मामला के ऊपर अपना किया। हाँ, मुश्किलात भी हैं, परेशानियां हैं, तकालीफ हैं, लेकिन जिस तरीके से मायूसियां बताई गई आज पाकिस्तान को, डॉक्टर मैं आखिरी बात करके,
जी, जिस तरीके से बताया गया कि जी हम तो पता नहीं मनाएंगे नहीं और पता नहीं पाकिस्तान का दिन जो है उसको हम यौम पता नहीं किस तरीके से बनाएंगे, उनके मुंह आज जो है वो काले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं गैर मुमालिक में भी बाहर निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसको सवाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नूर है। ठीक है, मैं आता हूं जरा। रोकड़ी साहब मेरी आवाज आ रही है? रोकड़ी साहब मेरी आवाज आ रही है? जी रोकड़ी साहब मेरी आवाज आ रही है? रोकड़ी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? रोकड़ी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो ऐसा करते हैं हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। लगता है आज पूरा प्रोग्राम ही अब्दुल्ला गुल साहब के साथ होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन। जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मेरे साथ हैं? अच्छा सर, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आज माशाल्लाह पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए हैं और 77वां यौम आज़ादी है, यानी इंडिपेंडेंट डे है। आप बाहर निकले हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं सर? लोग निकले हुए हैं कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि मैं कराची में निकला था तो लोग हैं, उनके सब परचम पहना लिया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लिया हुआ है। मैंने किसी बच्चे बूढ़े औरत के हाथ में किसी पार्टी का झंडा नहीं देखा, माँ सवाए चंद लोगों के जो किसी कोने में खुदरे में खड़े हुए किसी सियासी जमात का परचम लेके वहाँ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक मौज थी, एक समुंदर था आवाम का, जो सब परचम के साथ माथे पे, सीने पे, आंखों पे, बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े सब लेके निकले हुए थे। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं बल्कि पहली दफा ये जो बाजा है ना जी, ये वही एक तकलीफ दे चीज है लेकिन ये पहला जश्न आजादी है जिस पर बाजा भी तस्कीन दे रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े गिरोह की ये ख्वाहिश भी थी, ये एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश भी थी कि किसी तरीके से ये जश्न आजादी या ये जो आजादी का दिन है इसको पाकिस्तान के हम उस तरीके से नहीं मनाएंगे। और इसके पीछे आपको भी मालूम है कि बहुत बड़ा एक सिलसिला चला। लेकिन जिस तरीके से लोग निकले, या जिस तरीके से बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने अपने इत्मीनान का और अपने जो कॉन्फिडेंस का और एतबार का इजहार किया, तो उसको देख के सुकून मिलता है कि पाकिस्तान जिंदा है। यानी पाकिस्तान से कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम कहें कि पाकिस्तान में मुर्दा दिली हो गई या पाकिस्तान को इश्यू हो गया। पाकिस्तान जिंदा है डॉक्टर साहब, ये बहुत एक तसल्ली वाली बात है जो मैंने देखी थी। जी सर। मसलन ये जो एक ग्रुप जो है वो खड़ा है और पूरी दुनिया में उसने ऐलान किया था कि आज पाकिस्तान को यौम स्याह के तौर पे हम मनाएंगे, तो वो कहाँ खड़ा है सर? वो किधर है? आपने देखा कहीं? वो है, नजर आया कहीं आपको? वो ग्रुप जैसे नाकाम और नामुराद पहले हुआ, अभी भी उसी तरीके से नाकाम और नामुराद होगा, क्योंकि उस तमाम गिरोह की जो साजिश थी वो कुछ छोटी साजिश नहीं थी, एक बहुत बड़ा ये सिलसिला था, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका हम देख चुके हैं, उसको फेस भी कर रहे हैं और उसके मामलात को हम भांप भी चुके हैं। लेकिन जो पहले आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर बयान जो साथ शेयर की, उसमें एक खूबसूरत शेर पढ़ा गया कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। और इसी मौज को, हमारे इस दरिया की मौज को ही तो अलहदा करने की कोशिश की गई और हमें एक दूसरे से जुदा करने की। लेकिन बहुत खुशाइंद बात है कि ना सिर्फ मामलात ठीक हैं बल्कि तसल्ली बख्श हैं। और जिस तरीके से समझा जा रहा था कि जो पोलराइजेशन है उसको उस स्टेज पे ये समझ रहे थे कि हम लेके जा चुके हैं कि इनके इशारे पे रेड लाइन इनकी शख्सियात होंगी या रेड लाइन इनकी हस्तियां होंगी। तो पाकिस्तान की अवाम ने आज ये साबित कर दिया
कि कोई शख्स, कोई हस्ती, कोई बंदा रेड लाइन नहीं। रेड लाइन ये पाकिस्तान है, मुल्क है, और लोग अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ जरा पहले अब्दुल्ला गुल साहब से बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं बाहर निकला तो मैंने आम लोगों से बात की, मैंने कहा जी रेड लाइन आपकी क्या है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। बच्चा भी बोल रहा था, बूढ़ा भी बोल रहा था, जवान भी बोल रहा था। फिर रेंजर्स वाले खड़े थे, पुलिस थे, उनसे मैंने बोला भाई आपकी रेड लाइन क्या है? तो उन्होंने कहा सर हमारी रेड लाइन भी जो है वो पाकिस्तान है। तो सर 25 करोड़ अवाम की रेड लाइन पाकिस्तान है, 10 लाख फौजी, नीम फौजी फोर्सेस, उनकी जो है वो रेड लाइन पाकिस्तान है। तो ये जो बाकी रेड लाइन जो पूरी दुनिया में शोर मचाया गया था कि आज योम स्याह होगा, ना मैंने यूके में देखा, ना लंदन में देखा, ना मैंने यूरोप में देखा, ना अमेरिका में देखा, ना यूएई सऊदिया में। जहां मैंने देखा भरपूर तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ एक ही झंडा था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान परचम था। हाँ, कुछ लोग नजर आए कोने खुदरों में। क्या कहेंगे सर, ये कौन लोग हैं और किस तरह की ये पोलराइजेशन की है जिसकी बुनियाद पे इस किस्म के लोग पैदा हो गए? तो जी पाकिस्तान तो सदा ही पाइंदाबाद है। कमाल है, मेरे मुल्क को मौत आनी नहीं है कोई, मेरा मुल्क तो कायम रहने के लिए आमीन। और ये इस्लाम की वारिस रियासत है, मुसलमानों की कुर्बानी का सिला है। 50 लाख मुसलमान जो है वो शहीदों का खून जो है इनके खोखले और झूठे नारों से जो है ना वो दबने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला। और आज तक शहादतें चल रही हैं। मसला ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम, मैंने आपको बताया कि मैंने ये चैलेंज लिया, हमने जब ये देखा कि मुल्क के हालात ऐसे बन रहे हैं, 3 माह के अंदर हमने ये झंडा बनवाया 850 फुट लंबा, और हमने अपने तमाम वसाइल जो थे इसके ऊपर लगाए। नतीजा ये निकला कि लोग आए सड़कों पर, जो साइड पे जा रहे थे लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं, लोगों ने परचम थामा है और लोगों ने परचम के साथ चले हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, मैं कहता हूं एक बहार थी और तस्वीरें उतार रहे थे, और जो जाता था वो पाकिस्तान का नारा लगा के जाता था, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, शोहदाए पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कलमात अदा करता था। फलक शिगाफ नारे थे। आप मुझे महसूस नहीं कर रहे कि आई एम ग्लोइंग विद प्लेजर, मैं तो फूला नहीं समा रहा। उन लोगों के लिए जो पैगाम जो है वो यही है कि उनका जो बयानिया है वो नाकाम हो गया। उनकी सियासत के हवाले से सियासतदानों के साथ अपनी मखासमत को वो सामने लाए। पाकिस्तान रियासत है, मां की बेहुरमती करने वाले को जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी। ये धरती मां है, एक मां आपको 9 महीने अपने जिस्म का हिस्सा बनाती है तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत के जो है वो तुम्हारे उसके पैरों में रखती है, और एक मां ता कयामत आपको मरने के बाद अपनी कोख में समो लेती है। क्या उसका कोई कर्ज नहीं है? ये गद्दार वतन लोग हैं जो पाकिस्तान की बेहुरमती करते हैं, जो पाकिस्तान के जो जश्न आजादी है उसको भारत और इसराइल की ईमा के ऊपर जो है वो आप यौम शाह बनाने की कोशिश करते हैं। शाह नहीं हुआ, यौम शब्ज हुआ, और जबरदस्त किस्म का हुआ। इस बार का जो जश्न आजादी था वो दीदनी था। जिस तरीके से खुर्रम साहब ने बताया कि बाजा जो है वो आम हालात में बुरा लगता है, लेकिन आज का बाजा जो था ना वो तो जीवे जीवे पाकिस्तान का बाजा था। बाजा नहीं था सर, बाजे। हाँ। बाजा नहीं था सर, बाजे थे, बाजे। हर तो के हाथ में बाजे थे। और मुझे अपने गालों पे पेंट किया हुआ है, बच्चों ने पाकिस्तानी झंडे उठाए हुए हैं, और किस अंदाज के अंदर जो है वो लोगों का जोश जज्बा दीदनी यूरोप के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इस टाइम पे मैंने देखा कि थाईलैंड के एम्बेसडर ने और उनकी पूरी टीम ने पाकिस्तान के बकायदा फ्लूट बजा के उन्होंने जो है खुद एम्बेसडर चक्रित ने वो हमारा ट्रिब्यूट पेश किया। इसी तरीके से यूएई की एम्बेसी ने पूरा बच्चों के साथ पाकिस्तान का तराना पड़ा। इसी तरीके से जर्मनी के, अमेरिका के दीगर जो एम्बेसीज हैं उन सब ने मैसेज ऑफ फेलिसिटेशंस और जो मुबारकबाद के पैगामात थे वो दिए। ये कोई मामूली बात है? ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो पाकिस्तान में मायूसी है? ठीक, मैं आता हूँ जनाब रोकड़ी साहब। रोकड़ी साहब से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और इस प्रोग्राम के जो कि अब तक डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम है उसके प्रोड्यूसर पूरी टीम को, कि बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जब ये गुफ्तगू हो रही थी
तो कराची के अंदर और पूरे बल्कि वीडियोस मौजूद हैं मेरे मोबाइल में, इतनी वीडियोस हैं, ह्यूस्टन की भी है, लंदन की भी है, दूसरे मुल्कों की भी है, पाकिस्तान की भी है, DHA लाहौर की भी है, कराची की भी है। अगर इस वक्त ये चल रही होती तो इन बातों को यहाँ बड़ा पजीराई मिल रही होती, लेकिन अफसोस है कि ये टीम की, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने ये फुटेजेस इस अहम तरीन प्रोग्राम में नहीं चलाई। बहुत ही अफसोस है मुझे इस बात पे। जी रोकड़ी साहब, ये मुझे बताइए कि इस पाकिस्तान ने तो हमें ज़मीन दी, जगह दी, नाम दिया, और इसके नाम के ऊपर, इस पासपोर्ट के ऊपर दुनिया में आप छा गए, लेकिन हमने इस पाकिस्तान को क्या दिया ये बताइए। एक तो ये ज़रूर बताइए, और दूसरा ये भी बताइए कि आज जो 76 साल पाकिस्तान को बना है, उसमें बहुत सी चीज़ें तकलीफ दे हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है सर? डॉक्टर साहब, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम हैं हमने अपनी कदर उस तरह की नहीं, या जो हम हैं हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट रखा, और हमें ये इल्म ही नहीं कि हम दुनिया में एक बहुत मुअज़्ज़िज़ और एक बहुत मजबूत और दुनिया का एक महवर है। दुनिया हमारी तरफ देखती है, और हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने हमारी उस संजीदगी, हमारी उस मजबूती, हमारी उस गैरत, हमारी उस हमीयत, हमारी उस जो वतन दोस्ती है, उसको तमस्खुर में उड़ाया और उसको एक और रंग देने की कोशिश की। सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत हमें सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि हम मुअज़्ज़िज़ हैं, और हम वाकई मुअज़्ज़िज़ हैं। दुनिया हमें मुअज़्ज़िज़ समझती है, और हमारी अच्छी कौम है, जहां पर भी जाती है हमारी कौम वहां पर अच्छे असरात छोड़ के आती है। हमारी कौम बुरी कौम नहीं है, हमारी कौम पसंदीदा कौमों में से है। तभी जर्मनी ने, जब जर्मनी बस रहा था, तो जर्मनी ने दुनिया पूरी में से अगर 2 मुल्कों को सेलेक्ट किया था तो वो एक पाकिस्तान था और एक तुर्की था, और उन्होंने उस वक्त भी प्रायोरिटी पाकिस्तान को दी थी कि पाकिस्तानी जाएं और जर्मनी में जाकर बसें और उनके मुल्क को अपग्रेड करें और अपलिफ्ट करें। तो हमने, हमारी जो कमजोरी है हम उसकी तरफ आए तो हमने अपनी कदर नहीं की। हमारे जो कुछ रहनुमा बने उन्होंने हमारी इस कौम की, अपने वतन की, अपने ज़खायर की, अपने वसाइल की, अपने नौजवानों की हमने कदर नहीं की, और हमने अपने आप को उस डायरेक्शन में जिस पे हमें होना चाहिए था और जिस डायरेक्शन पे चलने की वजह से हम आज बहुत बुलंद होते, हमने वो डायरेक्शन नहीं पकड़ी। लेकिन वो तमाम चीज़ों को छोड़ दें, हम आज इस तमाम क्राइसिस में, इस तमाम केओस से गुजरने के बाद आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि मेरी इस उम्र में 53 इयर्स आई एम नाउ, अब्दुल्ला गुल इज अगेन 45, 43। आप मेरे से शायद आप और हम एक हम उम्र होंगे, आप बड़े होंगे। हम उम्र के उस हिस्से में कि हमने दुनिया का बहुत उतार चढ़ाव देख लिया, दुनिया की बहुत सारी चीजें देख ली, और हम रिजल्ट्स पे पहुंचने वाली एज के अंदर है। क्या आपको और हमें इसमें कोई शक है कि आज हम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें तो हम मुआशी सूरत हाल में भी और हर लिहाज से हम अपने वसाइल और ज़खायर और ख़जानों को बचाकर हम बहुत आगे जा सकते हैं। और हम करप्ट कौम भी नहीं है, हम लिफंगे और लुच्चे और बदमाशों की कौम भी नहीं है जैसे दूसरी दुनिया के अंदर अक़वाम हैं जो ज़ाहिरन बड़े सोफिस्टिकेटेड नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत वहशी, जालिम और इंसान दुश्मन है। हम इंसान दोस्त लोग हैं। तो पाकिस्तान एक यूनिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को डायरेक्शन देने वाले उमरा और पाकिस्तान को डायरेक्शन देने वाले सरबरा या वो लोग जो मैटर करते हैं वो मिल गए। कल की तकरीर उठा लीजिए और कल की तकरीर को आप देख लीजिए जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की तकरीर है और जो वहां का फंक्शन है। आज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप सिचुएशन को देख लीजिए और आप आज देखें कि आज हमारा जो स्टेज पे हम आज खड़े हुए हैं और पाकिस्तान को जिस अच्छे तरीके के साथ एक वतन दोस्त पाकिस्तानी की सूरत में लाकर एक ऐसे इंसान को कि जो इस पाकिस्तान की शिनाख्त है, ईस्टर्न शिनाख्त है। अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट से ऑब्सेस्ड रहे हैं। बीबीसी का एक तज़किरा था कि पाकिस्तानी अंग्रेजी जबान से मरूब होने लग गए, अंग्रेजी अलूम और हुनर से फायदा नहीं लेते। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम ईस्टर्न फेसेस
पाकिस्तान के फेसेस, जो पाकिस्तान के चेहरे हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं और हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। हम एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ हैं, हम एक खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ हैं, हम एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, मैं मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ और अब्दुल्ला गुल साहब से एक अहम सवाल करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला गुल साहब, अभी मैं आपका वो देख रहा था, आपने भेजा है मुझे, ये तो बहुत बड़ा झंडा है सर, बहुत ही बड़ा और बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है जीवे पाकिस्तान की। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये फुटेजेस मेरे पास है। अफसोस ये हमें पहले मिलती तो हम चला देते। मुझे सर एक बात बताइए, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, कि आर्मी चीफ की बातों से और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि 14 अगस्त 2023 जो उनकी टीम है आर्मी चीफ की, जैसे उन्होंने ज़राअत के ऊपर ज़रई सब्ज़ इनकलाब, फिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट आपके वो, और मादनियात पे इन्वेस्टमेंट और काउंसिल बनाना, इसी तरीके से लगता ये है कि 14 अगस्त 2023 से एक नया पाकिस्तान अब डेवलप होने वाला है। क्या कहेंगे सर? खुदा के लिए डॉक्टर साहब प्लीज ये नया पाकिस्तान, ये सॉरी माफी चाहता हूँ सर। मसलन हम एक नए जबरदस्त अपने वलवले के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमें पुराना ही चाहिए, हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। यस, हमें अपना, हम सबका हमारा पाकिस्तान यस सर, हमारा हमें अपना पाकिस्तान। शुक्रिया आपने जो बात की। देखिए, आर्मी चीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने डायरेक्शन ले लिया है। मैं फौज के मेरे ख्याल में कुछ अहम लोग और जो मेरे ख्याल में रियासत के अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। ये वतन जो है ये इस तरीके से चंद अशखास के आगे यरगमाल नहीं बनाया जा सकता, इस सिस्टम के आगे यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। इस सिस्टम की खातिर जो है पाकिस्तान को कुर्बान कर नहीं सकते डॉक्टर साहब। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए इस सिस्टम को कुर्बान किया जा सकता। ये कोई मैग्ना, वो कोई ये नहीं है कि हरफ आखिर है ये सिस्टम। एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, एक नए निज़ाम की जरूरत है, एक ऐसे निज़ाम के जिसमें गरीब और अमीर के लिए इंसाफ के तकाजे बराबर हों, जहां हर आदमी जो है वो खुशहाली की जिंदगी और जो हिफाजत, कफालत और अदालत के 3 बुनियादी रियासती असूल होते हैं उनको सामने लेके आए। अभी देखिए, मायूसियों की बात नहीं है, गडानी शिप ब्रेकिंग आपके पास थी, आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने बनाई, आपने जो है बेहतरीन रेडार बनाए फ्रॉम द स्क्रैच। दुनिया के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कसीर ज़र मुबादला जो है वो हासिल कर रही है। सऊदी अरब है, चीन है, ये दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं। ये कोई बेवकूफ तो नहीं है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईरान इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक नई डायरेक्शन के ऊपर चल निकला है। जब स्टील मिल बनाई थी तो रूस ने इन्वेस्टमेंट की थी। देखिए ना डॉक्टर साहब, डैम बनाए हमने, तरबेला डैम बनाया, मंगला डैम बनाया, ये कोई मामूली, हम तो भूल जाते हैं सब कुछ कि हमने कुछ किया ही नहीं है और हम तो मायूसियों के शिकार हैं। इस पाकिस्तान ने वो जो मॉडल था, जो पाकिस्तान का 5 साला मंसूबा साउथ कोरिया ने अपनाया, चीन ने अपनाया, वो आज कहाँ खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चंद एक क्लास थी ना, उसने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। मेरे ख्याल में हुक्मरानों ने अपने मफादात की खातिर जो है अपने रात के हवाले से इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। आपको याद होगा नेशनलाइजेशन हो गई, क्या हुआ, उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री जो है वो परवान चढ़ रही है। तो हमारा ऐसा नहीं है, ये भी पाकिस्तान, डॉक्टर साहब आखिरी बात ये है कि ये वही पाकिस्तान था ना जिसके काबिल तरीन लोगों ने जो है स्पेस के अंदर पहले गए। अभी दुनिया सोच रही थी और हम स्पेस में जा चुके थे। इसी तरीके से यही पाकिस्तान है जिसने मल्टीपल चीजों के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। क्रिकेट में, आपका हॉकी में, आपका स्क्वॉश के अंदर ये पाकिस्तान है। स्नूकर के अंदर
ये कोई मामूली बातें हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। पाकिस्तान का महल वकूफ, जंगें मुसल्लत हो गई आपके ऊपर, अफगानिस्तान में रूस आ गया, अमेरिका आ गया, उसके बावजूद आप खड़े हैं, ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आगे बढ़ेंगे। जनाब रोकड़ी साहब 2 मिनट आपके पास है सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, कहना यह है कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हमारी एक सिर्फ केटू पहाड़ को आप देख लें और उसके साथ जो इसके साथ के और बड़े हमारे पहाड़ हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नेपाल के पहाड़ तो बहुत बाद में आते हैं। जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे पास बलूचिस्तान का इलाका है दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर है दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं ममालिक के पास नहीं है। हमारे पास जो कौम है मेहनत करने वाली, वो बाकी दुनिया में इस तरह कौम नहीं है। करना क्या है? डायरेक्शन चाहिए। क्या? हमें अपने मुल्क से मोहब्बत, और उसके लिए जरूरत किस चीज की थी कि हमारी जो लीडरशिप है वो पेट्रियट हो, ईस्टर्न हो, पाकिस्तानी हो, और उसे पाकिस्तानी होने पे फख्र हो, और उसको वेस्ट से वो ऑब्सेस्ड ना हो। लाजमी नहीं है कि अंग्रेजी बोल के और बहुत सारे वो काम करके वो अपने आप को अपनी कौम से अलहदा समझने की कोशिश करे। हमें इत्तेहाद की जरूरत है। हम पहले ही मुत्तहिद हैं। हमारा लीडरशिप तब्दील नहीं कर सकते हम, जो हम बरसों से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान लीडरशिप तब्दील नहीं कर सकते सर। पाकिस्तान में बरसों से जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है, तो हम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों को लीडर नहीं बना सकते सर, ताकि ये सारी चीज़ें। ये लोगों की ख्वाहिश है, यही डिमांड है लोगों की। आज आप पाकिस्तान में घूमें फिरें, लोगों को मिलें, लोगों की डिमांड यही है जो आपने कही है। अब हमने उसको अचीव कैसे करना है, ये एक हमारे लिए सब्जेक्ट है। और अल्लाह ताला खैर करे, हम बेटर इकोनॉमी के साथ, अच्छी मुआशी तरक्की के साथ इंशाअल्लाह ताला उस तरफ जाएंगे। रिफॉर्म्स के साथ हमें हर शोबा में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कंपैटिबिलिटी हमारी बहुत है, हमारे अंदर हीलिंग पावर बहुत है, और हमारे अंदर अच्छाई यानी किसी भी मॉडर्न चीज को, दुनिया में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनको अडॉप्ट करने की सलाहियत मौजूद है। हम कोई इशू नहीं है हमारे लिए। और हमारे लिए सबसे अहम इस वक्त क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, और कौम को यह पता हो कि कानून क्या चीज है, और कानून प्रोटेक्शन दे यतीमों को, मसाकीन को, बेवाओं को, और सबसे बढ़कर हमारा जो औरत है उसको प्रोटेक्शन की, उसको उसकी हैसियत के मुताबिक इज्जत की जरूरत है। कि कोई भी नौजवान लड़की अगर रोड के ऊपर निकले उसे कोई खौफ ना हो कि मुझे कोई हैरेस करेगा या मुझे कोई ट्रबल होगी। हमने अपनी औरतों को सिक्योर करते हुए उनको मजबूत करना है। और फिर हमारा कानून तो अशराफिया के लिए, हमारा कानून अशराफिया के लिए। बहरहाल बड़ी जबरदस्त बात की है, टाइम खत्म हो गया है। तो अब्दुल्ला गुल जैसे लोग अगर लीडर बने और इस मुल्क के ऊपर आए और इस मुल्क पे हुकूमत करें, अब्दुल्ला गुल जैसे लोग, आप जैसे लोग, तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो तमाम इन चीज़ों की मौजूदगी में, वैसे आर्मी चीफ और उनकी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान की कौम, और उम्मीद है कि आर्मी चीफ और उनकी पूरी टीम पाकिस्तान को मायूस नहीं करेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।